Okay, in yesterday's class, we have studied about the natural vegetative propagation. Now, in today's class, we will study about artificial vegetative propagation. This is very easy and it doesn't have any importance in terms of the question. You just have to keep this one in knowledge, okay? So, first one is what man-made method. Artificial vegetative propagation is also called as what man-made methods, because everything is done by man. He manipulate the plant, he cut out the plant, and he is only responsible for the development of new plant. Okay, that is why it is known as artificial method, and it is done with the help of man. First one is cutting. What is cutting? Basically, what is done in cutting? Take this as a stem of the plant, like 2 or 3 stem, and one flower is there. Okay, so basically what is done in this, one part or one twig or the stem part is cut with the help of knife or scissors or anything. Okay, cut by man. Okay, cut by man, and this cutting part then happens what, it is being grown into the new pot, and this plant part is grown into the new part, and this plant will grow into a separate plant from the parent plant. This one is parent plant, now it is new plant. So formation of new plant from the parent plant with the help of man is known as man-made or artificial vegetative propagation. And this kind of method, where we cut one part of the stem and insert it into the pot or soil or sand, whatever, to grow into a new plant, to make a copy of that original plant, then it will be called as cutting. This process is what? Cutting. Okay, understood? Cutting can be done in any kind of plant, and unless and until favorable conditions which are required for a plant to grow is there, cutting can be done in any plant. Mostly जो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाते हैं जो भी प्लांट, वेदर इट इज लीफ और स्टेम पार्ट और फ्लावर पार्ट, उस प्लांट को जनरली लेकर दूसरे प्लांट में डाल दिया जाता है. देयर इज मोस्ट फेमस एग्जांपल ब्रायोफिलम इज देयर, वन प्लांट सदाबहार वी से इन हिंदी, दैट आल्सो what happens, उसका एक पार्ट हम लोग काट के उसको दूसरे प्लांट में लगाएंगे, then it will grow automatically if the necessary environmental condition is okay. Okay, so यहाँ पे कुछ examples भी दिए हुए हैं, like ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम is most famous because leaves इसकी इतनी capable होते हैं ग्रोथ की, किसके leaves में ही नया प्लांट की ग्रोथ की कैपेसिटी है. देन रूट्स में से टैमरिन ग्रो कर सकता है, स्टेम्स का अगर काट के लगाओगे शुगर केन एग्जांपल दिया हुआ है, तो बहुत सारे हैं. दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स. नाउ वी विल कम टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज लेयरिंग. इन दिस मेथड स्मॉल पोर्शन ऑफ रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांचेस, एंड व्हेन दे आर ग्रोन अ लिटिल बिट मोर, देन द स्टेम पार्ट इज कट एंड प्लांटेड in form of a new plant. अब इसमें क्या होता है लेयरिंग में कि this one is the plant twig or plant part, and this one is another stem which has arising from this part, and here the flower are there. Okay, so what happens, we can say man take the soil or wrap it around one part of the stem. Okay, and this soil is wrapped for few days. After wrapping it for few days, what happens, these twigs will start developing the formation of roots inside this stem part. Okay, and after that, when it starts formation of development of roots, what happens, man cut this plant twig from here and they plant it into the soil like this. If soil is there, the whole new plant is planted into the soil and it will grow into a new plant. So new plant will be formed by layering method. Okay, the stem part has been taken from the original parent plant and it has been grown into the developing roots from that attachment of their parent only. After the formation of root, then they will be detached or cut out from their original parent plant, and then they will be inserted into the soil for the formation of new plant. So this is called as what? Layering. सॉइल की स्टेम पे या प्लांट के स्टेम पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की लेयरिंग करते हैं. लेयरिंग करने के बाद उसमें रूट डेवलप होने लगता है उसके स्टेम में ही. फिर जब उस रूट के स्टेम में स्टेम में रूट डेवलप होने लगता है तो उसको काट के दूसरे प्लांट में या दूसरी जगह लगा देते हैं ताकि एक नया प्लांट बन जाए. ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट दिस वन? Yes, ma'am. Okay, now we will come to this grafting part. Grafting is also very important. इसका famous 3 example बहुत famous है. That was I have written also, rose plum peach. ऐसे ही रट्टे रट्टे गाना गाते गाते याद करो rose plum peach, because this has been asked in several other exam, not NEET importance but several other entrance exam it can ask. Okay, this one in this one, part of plant taken and attached to the other plant as 2 plants merged to grow into one plant. The rooted supporting portion is called stalk, while the twig of another plant is called scion. See what happens, यहाँ फिगर में देख लो, ये एक पार्ट है प्लांट का, ये प्लांट ए है
This part is of plant B, okay, and plant A, plant B. Some part of the plant A has been taken out and is inserted into the plant B like this. And after some time, you will see that they have jointed together like this. They will be joined as a single plant part. Okay, after this joint, they will form a new plant and they will be same because the part which have been cut down, they belong to the same species. Okay, mostly they belong to same species, and new plant will be developed. ये मेनली क्या होता है, स्टॉक वाले पार्ट का जो प्लांट रहता है वो ही डेवलप करता है आगे जाके, बिकॉज इसकी अब्सॉर्बेंस रहती है रूट की, इसके पास सारा रूट और वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी रहता है, तो दिस वन चेंजेस दिस वन और इसी से ग्रो करता है एक नया प्लांट. दे विल बी स्ट्रक्चरली सिमिलर टू देयर पेरेंट प्लांट बिकॉज species of the scion and stalk are same. Okay, so this one is what grafting. It is also done in rose plum peach. Rose में तो सबसे ज्यादा होता है, रोज का एकदम फेमस ये तरीका है. बहुत लोग बोलते हैं इसको कि काट के लगाने का, तो this one is the most famous way. Next is propagation. Propagation is mostly nowadays evolving because ये scientific method है, laboratory method है. इसमें क्या होता है, they take one part of the cell, one just a small portion cell of the plant, and then they culturally try to grow it out. Like cell division, it will grow. After that, this cell division will form a tissue inside which a number of cells will be there. Tissue of a single parent plant, which plant they have to grow in large number. Okay. Then this tissue is growth of this tissue is been taken under the observation. Okay. Under observation, all the things has been done. All the minerals requirement, all the food requirement, nutrient requirement, everything will be taken under observation, and then it will grow and it will form a callus-like structure. Means a small plant का structure जो होता है, callus-like structure में जब तक ये develop नहीं हो जाए, उसका under observation रखते हैं. Callus-like structure के बाद से इस callus-like structure को क्या करते हैं? They take out from the laboratory and then they bury it and plant it in the soil. Not bury it, plant it in the soil for the formation of new plant. Okay, so this is what micro propagation. Micro propagation means कि एकदम माइक्रो लेवल पे, यानी कि सेल के लेवल पे जाकर के उसको प्रोपोगेट करते हैं और एक नया प्लांट तैयार करते हैं उससे, जब तक कि वो प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि कैलस के साइज का ना हो जाए. एक सीडलिंग के साइज का प्लांट जब तक नहीं हो जाता उसको ग्रो कराते रहते हैं अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, अंडर ऑब्जर्वेशन. सब कुछ उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है उस सेल को, उस टिश्यू को. ओके, यहाँ पे देखो एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है प्लांट का सोर्स लिया, सेल, उसको सेल कल्चर कराया 2-3 महीने तक, फिर डेवलपमेंट हुआ थोड़ा थोड़ा शूट का, फिर देखो स्मॉल क्लम्स ऑफ शूट 2 महीने में और बड़े हुए हैं, फिर नॉर्मल इंक्रीज हुआ साइज में. उसके बाद क्या हुआ, स्टेज 3 में ये इसको रूटिंग कराया जाता है. इन विट्रो में देखो ये भी अभी तक लैब के अंदर ही हो रहा है सीडलिंग कंडीशंस में. फिर जब 3-4 वीक्स हो जाते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस होने में 5 से 6 महीने के अंदर अंदर, जब तक इतना बड़ा प्लांट नहीं हो जाता उसको नहीं बरी कराया जाता या नहीं प्लांट किया जाता उसको सॉइल में, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है. ठीक है, तो अप टू 3 मंथ ऑब्जर्वेशन रखा जाता है. मोस्टली 4 मंथ से 5 मंथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट वेराइटी दे हैव बीन टेकिंग. सो आफ्टर टेकिंग प्रॉपर केयर, जब वो सीडलिंग के स्ट्रक्चर का हो जाता है, तब वो उसको बाहर निकाल के सॉइल में ग्रो कराने के लिए डालते हैं. So this is all about artificial vegetative propagation. Any doubt in this 4 or 5 point, 4 point, I think. Any doubts, Sana? No, ma'am. Okay, so now we will move to our next topic, which is sexual reproduction in higher organism. Now, sexual reproduction is the root cause of genetic variability. This is first and foremost point. Sexual reproduction is the root cause of the genetic variability. Naturally, अगर genetic variability create कराना है तो sexual reproduction is the method. Now, what is sexual reproduction? You can define me. Define it to me, Sana. What is sexual reproduction? It is very simple. Okay. Organisms having ability to reproduce and young ones that is similar to parent body. Oh, that is the asexual reproduction. Sexual reproduction, जहाँ sexual reproduction का बात आए, इतना हमेशा माइंड में याद रखना, formation and fusion of gamete. सबसे मेन पॉइंट यही होता है, formation and fusion of gamete. Sexual reproduction involves formation and fusion of gametes. Gametes of what kind? Gametes of male and female. Sorry, ये male है, ये female है, तो वही चीज हो गया. I have drawn the symbol. Gametes of male and female, they will join together, they will fuse, and they will form after the fusion
fusion will be there, they will form then zygote will grow, and growth के बाद क्या हो जाएगा, नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा. ओके, सो स्टार्ट कहाँ से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट विल ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. फर्स्ट द गैमीट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट a series of complex structure and pathways are created for the fusion of these gametes, because male individually separate, female individually separate. Sometimes they are only a single individual is there, but most of the time male and female gametes have to fuse together. When they will fuse, then only the formation and fusion of the gamete and zygote will take place. Okay, so sexual reproduction का first point क्या है? Formation and fusion of gametes. ठीक है, we will write few points regarding this sexual reproduction. First one, it is the kind of reproduction that I have written. Let me start from the second point. Okay, it results in offspring. Okay. It results in offsprings that are not identical to the parents, not identical to the parents as well as among themselves. Why does this happen? Because of variability. Because of variability. Yes. So this line is saying that whatever the offsprings are formed through sexual reproduction method, they will not be similar to their parent, as well as they will be different from each other. See, we are looking at our siblings. Our siblings are not equally alike. Why? Because we are different genetically. We are having different genetic compositions, and this is possible only with the help of sexual reproduction, because sexual reproduction involves meiosis, and meiosis process में क्या होता है? क्रॉसिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और कुछ इसमें आता है, कुछ फादर का कवर होता है, कुछ मदर का कवर होता है, एक नया स्पीशीज बनता है, नया ऑफस्प्रिंग बनता है, जो कि अपने पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल नहीं होता, ना ही अपने सिबलिंग से आइडेंटिकल होता है. So this is the second point of sexual reproduction. Asexual reproduction ये नहीं हो सकता. Asexual reproduction only result in formation of clones, that is carbon copy of the parents. But sexual reproduction doesn't involve this carbon copy system. It forms new offspring which are different from their parents as well as their siblings. Then third point is very important. It is an elaborate and complex as well as slow process. Slow process. Unlike asexual method, ये क्या है? स्लो प्रोसेस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, और बहुत इलेबोरेट में होता है. ठीक है, एक छोटी छोटी चीज बहुत तरीके से होती है. इट हैपेंस विद अ सिस्टम ऑफ प्लानिंग, एंड इट हैपेंस इन अ स्लो process, and it requires time, it requires maturity period, it requires a lot of environmental conditions, physical conditions, and hormonal condition of the plant body and animal body. Okay, so that is why it is a slow process and complex process. Now, fourth point is the phases. If we talk about the phase, so the period of growth to reach maturity. Maturity से पहले sexual reproduction होगा ही नहीं. So the period of growth to reach the maturity, that period is called as juvenile phase. Okay, where organism can reproduce. That phase is called as juvenile phase. Juvenile phase is what? Basically the preparatory phase of this maturity period. Before attaining the maturity, whatever the period in which we are living, that period is called as juvenile phase. इस phase में sexual reproduction possible नहीं है, because जितने भी organs होते हैं, sex organs, वो fully develop नहीं होते हैं. They are not matured at that period of time. Hormonal growth नहीं हुआ होता. So that phase is known as juvenile phase, यानी कि young phase. Now the phase in which reproduction occurs, वो phase क्या कहलाएगा? The phase where maturity occurs. Maturity of gametes occurs. That phase is reproductive phase. Reproductive phase यानी कि यही फेज है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल है, जिसमें मैच्योरिटी गैमेट्स की होती है, जिसमें हार्मोनल बैलेंस भी होता है, जिसमें हार्मोनल मैच्योरिटी आ जाती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काबिल रहता है. कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल काबिल हो जाएगा. ठीक है. एंड देन थर्ड फेज, द फेज वेयर द गैमेट फॉर्मेशन स्टॉप्स और are very low, then that phase will be called as what? Is called as senescent phase, यानी कि old age phase.
सेनेसेंट फेज। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग will always takes place from juvenile phase, यानी कि children young phase. Then we will attain reproductive maturity and reproductive phase will start. After the reproductive phase, when we had a lot of sexual activity and up to attaining the age of senescent period, then till that period reproductive phase will continue. After that reproductive phase, what happens? Senescent phase occurs, यानी कि a plant or an animal attains the old age phase. Okay, senescent. Let me write senescent phase. So ये क्या है? Young है. This one is young. This one is mature, and this one is old age. With regard to the sexual reproduction, these following points are important. Okay. Now let us see from the slide what does it say. कुछ और नया पॉइंट निकल के आ जाए. As the fusion of male and female gametes are involved in the offspring produced are neither identical to their parents nor among themselves. वही सेम चीज की फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो ना ही पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं ना ही आपस में सिमिलर होते हैं. देन इट इज एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. बिकॉज एसेक्सुअल मेथड में क्या है? बॉडी को स्ट्रेच किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो गए. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? फॉर्मेशन बनना है, गैमेट का फॉर्मेशन होना है, फिर उस गैमेट को मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन किस तरह से होना है, पाथवे कैसे क्रिएट करना है, वो सारा चीज देखना है. फिर पाथवे क्रिएट करने के बाद में दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्म होना जरूरी है. तो मेनी थिंग्स आर देयर रिलेटेड टू दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, दैट इज व्हाई इट इज complex and slow and elaborate one. It helps in genetic recombination through variation. It plays important role in evolution. Evolution means कि देखो जेनेटिक वेरिएशन अगर हो जहां हो रहा है, इट विल ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन बिकॉज genetic variability is the root cause of evolution. Okay, this kind of reproduction is exhibited by multicellular organism, यानी कि higher organism जितने भी higher plants, higher animals, some of the fungi, they show this kind of sexual reproduction. Then the period during which an organism grow to attain maturity is called as juvenile phase in animals and vegetative phase in plants. Animals में juvenile phase नाम दिया गया है, plants में vegetative phase. When an organism starts reproducing sexually, then it is called as reproductive phase, यानी कि जब reproduction का process वो लोग अच्छे से start कर सकते हैं, then that phase is reproductive phase. When reproductive phase ends, it is marked by the old age phase, that is senescent phase. जहाँ reproductive phase end हुआ, वहाँ पे क्या होता है? senescent phase start हो जाता है. Then each of these phases are regulated by the hormones. हर phase में क्या है? हार्मोन का बड़ा important role है, which we have already studied कि हार्मोन कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे रोल प्ले करता है. Then sexual reproduction in plant, उसके बाद आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो पहले प्लांट का देख लेते हैं क्या है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनुअल एंड बाइनियल प्लांट शो ऑल थ्री फेजेस. तीनों ही फेज दिखाते हैं. पेरिनियल प्लांट्स में फेजेस आर नॉट डिफाइंड क्लियरली, लेकिन सम फ्लावरिंग प्लांट्स में अनयूजुअल बिहेवियर भी देखा जाता है, जैसे बैम्बू. प्लांट रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स होल लाइफ टाइम. ये शायद आई थिंक आई हैव टोल्ड यू 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है एंड आफ्टर फ्लावरिंग इट डाइज. ओके, सो ये बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है बैम्बू प्लांट का. देन सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स कैसे देखा जाता है? इन प्लांट सेक्सुअलिटी कैन बी होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल वी हैव स्टडीड. कैन यू टेल मी व्हाट इज बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल? Bisexual in which male and female sexes both are present, and in unisexual either male or female sexes are present. मतलब दोनों अलग होते हैं, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा. गुड. होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक भी क्या होता है? सेम प्लांट पे ही होमोथैलिक में होमो जहां मतलब होमो ऑलवेज मीन सेम. ओके, होमो ऑलवेज मीन सेम और हेटेरो मीन्स डिफरेंट. तो सेम मतलब क्या? उसी ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होंगे. मीन्स होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल एक ही टर्म हो जाएगा. ठीक है, और हेटेरोथैलिक और यूनिसेक्सुअल एक टर्म हो जाएगा. होमोथैलिक मतलब कि उसी ही प्लांट पे मेल भी प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड उसी प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट हो, और तब ये कहलाएगा होमोथैलिक या मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल. मोनोइशियस में भी सेम कंडीशंस आते हैं. मोनो मतलब एक, इशियस मतलब एक ही प्लांट के ऊपर, मतलब कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट पाए जा रहे हैं. सो होमोथैलिक कहो चाहे बाइसेक्सुअल कहो चाहे मोनोइशियस कहो, इट विल बी सेम. Example, Cara, Cucurbita, palm. There are many. I have written the few, which is important. Then there are plants where male and female reproductive system are present on different plants. These are called as heterothelic or dioecious plant, या फिर unisexual plant. Okay, चाहे unisexual कहो, चाहे dioecious कहो, चाहे heterothelic कहो, एक ही बात होगा. Date palm, Markensia. In some angiospermic plants, flower is the reproductive part. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये तो 9th क्लास साइकिल पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लावर क्या है? प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट का रोल प्ले करता है. ओके, सो एनी डाउट हियर कि व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी इज प्रेजेंट इन प्लांट? तीनों एक ही टर्म है.
whether you say homothalous or you say bisexual or you say monoecious, one term, और heterothelic और unisexual या फिर dioecious plant, तीनों एक टर्म है. कहीं ऐसे स्लैश स्लैश करके लिख लो. ओके, लेट मी राइट ऑल्सो. होमोथेलिक या फिर बाइसेक्सुअल या फिर क्या है, मोनोइशियस. नेक्स्ट इज हेटेरोथेलिक, यूनिसेक्सुअल या फिर डाइशियस. So these three are the same term. Now we will move to the next slide. What is the sexual reproduction in higher organisms? पहले प्लांट का ही कवर कर लेते हैं. Some angiosperm flower contains both pistil and stamen in one plant only. They are called bisexual. वही सेम चीज, अभी फिर वही यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है और बाइसेक्सुअल क्या है, वही सेम चीज. डेफिनेशन अलग अलग तरह से लिख दिया है वही चीज. मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है एक पार्ट पे तो बाइसेक्सुअल कहला रहा है, और अलग अलग उसमें प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब इसमें कॉकरोच का आएगा, अर्थवॉर्म का आएगा, ह्यूमंस का आएगा, अलग अलग तरह से आएगा, which we will study in detail in separate chapters. Sexual reproduction in animals. Some animals who reproductively active throughout their reproductive phase, that is example human. reproductive phase में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं. There are some other kind of organism who are reproductively active only at favorable season, जैसे कि frogs, cats, dogs, birds. कुछ सीजन होते हैं जिसमें वो लोग एक्टिव रहते हैं, otherwise they will be inactive. Then there are various changes that occur to organism pre and post reproductive phase. अब क्या बोल रहा है कि पहले reproductive phase से और reproductive phase के बाद बहुत सारे बॉडी में चेंज आते हैं, that is natural. और ये क्यों आते हैं? Because of hormonal changes. Hormonal change होता है इसलिए बॉडी में चेंजेस आते हैं. During the reproductive phase in mammals, there are cyclic changes that occurs due to the activities of ovaries, hormones, and accessory ducts. So, hormonal changes की वजह से ही एक लौता रीजन यही hormonal changes का ही है कि इतने सारे changes आते हैं बॉडी में mammals के. ठीक है, mammals including chimpanzee, monkey, and orangutan, gorilla, humans. It will involve all those kind of mammals. Okay. Then in non-primates, cyclic changes that occur through hormone ovaries is called estrus cycle. Cats, dogs, lion, etc. मीन्स कि इसके इनका भी साइक्लिक चेंज चलता है. अब वो किसके थ्रू चलता है? हार्मोन्स के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्ट्रस साइकिल. ठीक है. एंड नॉन प्राइमेट्स में तो ये चलता है, लेकिन प्राइमेट्स में क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो कि ह्यूमंस भी शो करता है, एप्स भी शो करता है, मंकीज भी शो करते हैं, ओरंगुटैन है, गोरिल्ला है, एप्स हैं, बहुत सारी चीजें. ठीक है. दे शो दिस cyclic changes which is known as menstrual cycle, and it is occurring through ovaries and hormones इसमें भी involved होते हैं. ठीक. Now sexuality in animals, unisexual and bisexual. Those organisms who possess male and female reproductive organs on different individuals. Their sexes are separate. They will be called as unicellular. जैसे कि cockroach, dogs, humans, cats, lions, tigers, many things are there. तो इसका हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कर सकते हैं देख के कि हाँ इनका मेल सेक्स है, ये फीमेल सेक्स है. ओके. सो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों का. एनिमल्स में भी have I not written about this bisexual? Okay, I have. Bisexual, those organisms who possess male and female reproductive organ in the same individual. Famous example earthworm. earthworm के बॉडी में मेल भी है, फीमेल भी है. ठीक है. earthworm, leech, sponges, etc. यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म में you will be able to see bisexuality. Otherwise हायर ऑर्गेनिज्म में क्या है? यूनिसेक्सुअल फॉर्म है. Now, events in sexual reproduction, क्या क्या events होता है? 3 main events in sexual reproduction. प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री-फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन. कहाँ से कैसे कैसे गैमेट फॉर्म होगा. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? गैमेट फॉर्म हो चुके हैं, अब फर्टिलाइज होने के लिए क्या है? मेल और फीमेल गैमेट का साथ में आना जरूरी है, फ्यूजन होना जरूरी है. फ्यूजन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो जाइगोट बनेगा. तो ये फॉर्मेशन एंड फ्यूजन वाला, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट का फेज है, ये फ्यूजन ऑफ गैमेट का फेज है. एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद का इवेंट. ठीक है. सो वी विल स्टडी अबाउट दीज. Pre-fertilization, then post-fertilization. Those event that occurs before the fertilization processes are called pre-fertilization event. अब pre-fertilization में भी क्या क्या है? एक तो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट का फॉर्मेशन होना. दूसरा प्रोसेस भी गैमेट का फॉर्मेशन के बाद भी क्या है? लेट मी सी, या गैमेट का ट्रांसफर. ओके, भूल गई थी. गैमेटोजेनेसिस मींस व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. गैमेट किस तरह से बन रहे हैं, एक मेल गैमेट कैसे बन रहा है या फीमेल गैमेट कैसे बन रहा है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. सी वी नो दैट जितने भी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होना, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का बनना, एन में आना. पहले तो 2n रहते हैं, 2n से n में बनना itself is क्या? इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो पहले इसको पार करना होता है, फिर जब ये बन जाता है n, तो इसको ट्रांसफर कैसे करें? पूरा पाथवे क्रिएट होता है फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ दिस n इनटू द फीमेल बॉडी. वहां जाके क्या होगा? फिर फ्यूजन होगा.
ठीक है, तो पहले तो ये बनना जरूरी है. लेट अस सी हाउ इट इज फॉर्म. इसको डिटेल में अभी हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. बस अभी यहाँ ऊपर ऊपर से देख लो, इसका डिटेल पूरा पूरा अच्छे से हम लोग को पढ़ना ही है सेकंड और थर्ड चैप्टर में. When the formed gametes are similar in appearance and are not differentiable, then they are called as isogametes or homogametes. एग्जाम्पल सम एल्गी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स ये हम लोग पढ़ चुके हैं. गैमेट्स अगर सेम तरह से फॉर्म हो रहे हैं तो आइसोगैमेट्स कहलाएंगे. गैमेट्स डिफरेंट तरह से फॉर्म हो रहे हैं अपीयरेंस में, शेप एंड साइज में, तो वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोगैमेट्स कहलाएंगे. ठीक है. हेट्रोगैमेट, द मेल एग इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड एंथेरोजोइड्स एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओवम और एग. ये प्लांट और एनिमल की बात हो रही है. प्लांट्स में एंथेरोजोइड्स कहलाते हैं मेल एग्स, और ह्यूमंस में मेल एग्स स्पर्म कहलाते हैं. तो ये बात हो रहा है कि जहां सेम साइज के गैमेट्स बने उसको बोलते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, जो कि लोअर प्लांट उसमें होता है, लोअर प्लांट ऑर्गेनिजम्स में होता है. एंड जो डिफरेंट काइंड के गैमेट्स का फॉर्मेशन करे उसको बोलेंगे हेट्रोगैमेट्स, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है. प्लांट्स में एंथेरोजोइड्स बनते हैं एंड ओवम या एग बनते हैं, एंड ह्यूमंस में या मैमल्स में या एनिमल्स में कह लो स्पर्म्स बनता है और एग बनता है. Then organisms like monerans, fungi, algae, bryophyte, etc. they have haploid parental body, so they reproduce gamete through mitotic cell division. यहाँ पे बात हो रहा है कि ये meiosis नहीं करता, ये mitosis कर रहा है. ये लाइन काट ही दो बल्कि. It is just a confusing line, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म को हमको पता ही है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. While the other organism like gymnosperm, angiosperm, most of the vertebrates including human have diploid parental body होता है, तो वो क्या करते हैं? गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं meiotic cell division से. The diploid parental cells have specialized cells which takes part in production of gametes. They are meiocyte और gamete mother cells. अब जो गैमेट बनाता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? meiocytes या gamete mother cells. यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लिया गया है कि कैसे बन रहा है. देखो ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट स्पर्म ही कहलाता है. फिर ये न्यूक्लियस फ्लैजेला, ये मोटिलिटी है, आइसोगैमेट्स की बात हो रही है. ये वाला आइसोगैमेट्स है, आइसोगैमेट्स जो कि लोअर प्लांट्स में बनते हैं, सम एल्गी. ठीक है. ये बी वाला पार्ट हो रहा है, ये हेट्रोगैमेट्स है, हेट्रोगैमेट्स. ये भी प्लांट का ही बात हो रहा है, ये प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स की बात हो रही है. ठीक है. एंड ये ओवम और स्पर्म वाला जो बात है ये होमोसेपियंस यानी ये ह्यूमन के स्पर्म का बात हो रहा है. ये भी क्या है? हेट्रो ही है, हेट्रोगैमेट है, जो कि क्या है? ह्यूमंस. ह्यूमंस में क्या होता है? ओवम बनता है और स्पर्म बनता है. ठीक. एनी डाउट टिल हियर? यस ना? एनी डाउट? नो मैम. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इन द गैमेट फॉर्मेशन? अब मेल और फीमेल गैमेट बन गए हैं. मान लो ये मेल गैमेट तैयार हो गया है, ये फीमेल गैमेट तैयार हो गए हैं ना. तो मेल एंड फीमेल गैमेट बन गए हैं. आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट व्हाट हैपेंस? दे शुड बी ब्रॉट टुगेदर. ये कहीं और है, ये कहीं और है. दे शुड बी ब्रॉट टुगेदर, शुड बी ब्रॉट टुगेदर. कैसे लाया जाए बताओ? देखो फीमेल गैमेट्स जो होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, दे डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ मोटिलिटी. ओके. सो व्हाट हैपेंस? मेल गैमेट जो होते हैं दे हैव द फैसिलिटेड process of moving towards the female gamete for the process of fusion. Okay, so this is the second step है. इसमें क्या होता है? majority the male gametes are motile and female gametes are stationary most of the cases. तो while in some algae and fungi both, ये इसका बात ही नहीं है, मेजोरिटी का बात करूं. ठीक है. मेजोरिटी में क्या होता है? मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल वाली स्टेशनरी होती है. मेल गैमेट को जाके फीमेल गैमेट के पास फ्यूज होना होता है. तो हाउ डज दिस टेक प्लेस? लोअर प्लांट और प्लांट्स में क्या होता है? दे इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर के साथ मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है. एंड हायर प्लांट्स में क्या होता है? इट डज हैपन विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ सम इंसेक्ट्स. ठीक है. एनिमल्स में क्या होता है? फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स अ मीडियम इज रिक्वायर्ड एज द फीमेल इज मोस्टली स्टेशनरी. तो मीडियम क्या हो जाएगा प्लांट्स में? वाटर हो गया, एयर हो गया, सम अदर काइंड ऑफ इंसेक्ट्स हो गए, बाई ह्यूमन प्रोसेस हो गया. ठीक है. तो ये सारी चीजें जिससे मेल गैमेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल गैमेट के पास. एंड उसमें अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट्स का ही बात हो रहा है ना. ओके. ह्यूमंस में कैसे ट्रांसफर होगा? बेसिकली ह्यूमंस और इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल गैमेट ट्रांसफर इन एनिमल्स, सो that also male gametes have to create a path, and that part which have to they have to conjugate themselves or they have to be close to one another so that the gamete transfer can take place. And this is the only process in animals by which gamete of male get transferred into the female ovum or female body, and then their fusion of male and female gamete takes place. Okay. So
इसमें तो अभी प्लांट का ही दिया है, मे बी नेक्स्ट स्लाइड में एनिमल्स का दिया है। इन प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट, बिकॉज ये लोअर प्लांट्स है। यहाँ पे क्या है, पानी ही मेन ट्रांसफर ऑफ मीडियम की तरह काम करेगा। Then for the process of union of male gamete to the female gamete, many male gametes fail to reach the female gamete, so they are produced in thousands of number so as to fuse with the female gamete. ये बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड you can write this line because in comparison to female gamete, male gamete को ट्रांसफर का काम करना होता है। in that transfer process वो रोड जर्नी पार करने में कितनी सारी मुश्किलें आएंगे, उस जर्नी को पास करते करते कितना गैमेट बनता है और कितना पहुंचता है, that is very less, ठीक है। so that is why मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर्स, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेट्स का कम होता है। देन उस थाउजेंड्स ऑफ जो मेल गैमेट्स बनते हैं उसमें से भी एक या दो ही क्या होते हैं, फीमेल के ओवम के सेंटर तक पहुंच पाते हैं फ्यूजन के लिए, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, जैसे ही सेंटर तक पहुंचते हैं बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाते हैं। ओवम एक केमिकल रिलीज करती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेनी गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट, तो थाउजेंड ऑफ नंबर में बनते हैं, सो दैट दे मेक श्योर दिस फ्यूजन कैन टेक्स प्लेस, इसीलिए लार्ज नंबर पे बनते हैं। इन सीडेड प्लांट्स लाइक पॉलन ग्रेन्स कैरी द मेल गैमेट दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा वेयर फर्टिलाइजेशन हैज टू टेक प्लेस एंड ओव्यूल कैरी द एग। सीडेड प्लांट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का काम करते हैं मेल गैमेट को ट्रांसफर करने का। अब पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है, हवा के जरिए हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो हवा के जरिए होता है, पानी के जरिए होता है, इंसेक्ट्स के जरिए होता है, ह्यूमन के जरिए होता है, बहुत सारे तरीका होता है, ठीक है। A large number of pollen grains are released when anther bursts. Sometimes the transfer of pollen grains from the stigma to the pistil are facilitated by vectors. Vector कौन-कौन से, water, wind, animal, etc. This process is known as pollination. We will study about the pollination in detail. Okay? तो अभी जरूरत नहीं है। अब देखो फ्यूजन यहाँ पे देखो दिखाया है कैसे होता है, फ्यूजन गैमेट का, फिर वहां से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एक न्यू इंडिविजुअल, ये जाइगोट है, यहाँ तो अभी ऐसे फिगरेटिवली दिखाया है, ठीक। एनी डाउट अप टू हियर कि इवेंट्स में क्या क्या हो रहा है, गैमेट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। देखो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन, यानी कि अब ये सेकंड प्रोसेस है, 3 इवेंट होता है, ये सेकंड इवेंट है, मेल फीमेल के पास पहुंच गया। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, देखो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। सिंगैमी इज कंफ्यूजिंग टर्म, ठीक है, ये सिंगैमी बहुत ज्यादा देता है, फर्टिलाइजेशन तो कम देता है। व्हाट इज सिंगैमी, तो सिंगैमी ही फर्टिलाइजेशन है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज सिंगैमी। सिंगैमी इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन इन प्लांट, ओके। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड एज जाइगोट। एन देखो क्या होता है, n प्लस n जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, और जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, दो तरह से होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल का, वो कौन करेगा, एल्गी, फिश, एम्फीबियन, जितने भी वाटर प्लांट हैं एंड वाटर एनिमल्स हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। एंड amphibian has the capacity to perform both external fertilization also and internal fertilization also, क्योंकि वो नहीं सॉरी एम्फीबियंस के पास क्या है, दोनों तरह के रहने की कैपेबिलिटी है, बट फर्टिलाइजेशन उन लोग का हमेशा एक्सटर्नल ही होगा बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये है। सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ बॉडी इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बॉडी के बाहर हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल में एल्गी, फिश, एम्फीबियंस। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन वाटर, वाटर में क्यों लार्ज नंबर, इस यहाँ पे क्या होता है, थाउजेंड्स से भी ज्यादा नंबर, मतलब 10,000 भी समझ लो नंबर्स में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वाटर में रिलीज करते तो मेक श्योर करना पड़ता है कि जहां रिलीज किए हैं वहां पे फीमेल गैमेट भी आए और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, कुछ फंजाई भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन नॉन मोटाइल एग इज फॉर्म्ड इन द फीमेल बॉडी एंड फ्यूजेस विद द मेल गैमेट दैट इज मोटाइल। यहाँ पे फिगर से भी देख लो, ये ओवम लार्ज नंबर ऑफ ओवा ये रिलीज कर रही है, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज कर रही है, और एक ही एरिया के आसपास करती है सो दैट ये फर्टिलाइजेशन हो सके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये होता है, एक मेल गैमेट को जाना पड़ता है, मतलब एक मेल को जाना पड़ता है फीमेल सेक्स के पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ओके। So this is how the fertilization takes place. Then after fertilization, what is happening? Post fertilization events will be take place. Zygote का formation हो जाता है. This even includes zygote formation and embryogenesis. Even which takes place after formation. तो zygote का formation होगा fertilization के बाद और embryogenesis.
अब ग्रोथ होगा, जाइगोट से मोरुला बनेगा, फिर मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, ऐसे फिर धीरे धीरे ग्रोथ। ओके, तो जाइगोट फॉर्मेशन में क्या है, द फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। दिस इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जाइगोट बन गया तो अब उससे ग्रोथ होने के लिए भी उसका प्रॉपर केयर करना पड़ता है ताकि एक स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सके। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट टू व्हिच इट इज एक्सपोज्ड। कहाँ पे कंडीशन कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जाइगोट कितना जल्दी बनेगा, किस तरह से बनेगा। ओके, इन सम द जाइगोट अंडरगोज अ रेस्टिंग पीरियड बिफोर जर्मिनेशन एंड डेवलप्स अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ टू प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज। जैसे कि अंडे में क्या होता है, अपने चारों तरफ लेयर बना लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ पीरियड के लिए वो लोग जर्मिनेशन से पहले या ग्रोथ से पहले उसको क्या करते हैं, अंदर ही अंदर हाई प्रोटीनेशियस पार्टिकल डेवलप करते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस पार्टिकल डेवलप करते हैं फॉर दिस जाइगोट टू ग्रो। जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है तब वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द जाइगोट डिवाइड्स बाय मेयोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स टू फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। ये प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है, हैप्लॉइड जाइगोट्स में हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोवाइड करने के लिए मेयोसिस करते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से, व्हिच फॉर्म्स डिप्लॉइड एम्ब्रियो रिजल्टिंग इन डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स, यानी कि वो सेम एज अ जाइगोट एम्ब्रियो की तरह डिप्लॉइड इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। Then in haplodiploidic individuals, zygote divide by mitotic division to form diploid sporophyte. Then the sporophyte forms haploid spores. देखो ये तीनों पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये तीनों ही प्लांट का बात हो रहा है कि कैसे बनता है। ठीक है, बाय मेयोसिस व्हिच डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि अगर जाइगोट हैप्लॉइड तरीके से डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बना रहा है और वहां से हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब वहां पे थ्रू आउट एन का कंडीशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ओनली एक कंडीशन आएगा एक लाइफ में कि जहां से जाइगोट 2n रहेगा, बाकी सब में एन 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 दिखेगा। फिर डिप्लॉइड वाले में क्या हो रहा है कि 2n का कंडीशन ज्यादा रहेगा, बाकी n वाला कंडीशन ज्यादा रहेगा। कब, जब सिर्फ गैमीट बनेंगे n वाले में तब रहेंगे। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या कह रहा है कि आधे में n बनेगा और आधे में 2n, मतलब दोनों की इक्वल अमाउंट पे n और 2n का कंडीशन रहेगा, तब ये क्या कहलाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो दिस वन इज डन। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो जाइगोट बन गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला सारा जाइगोट बनने के बाद अब जाइगोट को ग्रो करना है। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें भी 2 स्टेप होगा, सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ना होगा, माइटोसिस के जरिए फटाफट सेल डिवीजन होता है, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, फिर 16 सेल डिवीजन आएगा, फिर 32 सेल डिवीजन स्टेट आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके क्या होगा, धीरे धीरे ऑर्गन फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, तब जाके पूरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। देखो सेल डिफरेंशिएशन भी होता है, सेल डिवीजन भी हो रहा है, और ये सब जल्दी जल्दी होता है क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। अब वहां पे थोड़ी मेयोसिस होगा, गैमेट बनना था नहीं है, तो फटाफट माइटोसिस चलता है। द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट आउटसाइड और इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब देखो ओविपेरस या विविपेरस। ओविपेरस वाले कौन है, जो अंडे देते हैं। विविपेरस वाले कौन है, जो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल जो डेवलपमेंट होता है ऑफस्प्रिंग का, उसको कहेंगे विविपेरस। Oviparous में क्या गया, the animals in which development of zygote takes place outside of the body female parent is called as oviparous. In them fertilized eggs formed are covered with hard calcareous shell and are kept in a safe environment. After a period of incubation the young ones hatch out from the shell. Example में birds and reptiles. ठीक है, अब birds and reptiles में क्या करते हैं, वो लोग अपने ही fertilized zygote को इंक्यूबेट करते हैं, उसको प्रॉपर कंडीशंस देते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं, बाकी सारे एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाते हैं, सो दैट प्रॉपर अंदर प्रोटीनेशियस डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। जब तक वो खुद ही बाहर निकलने की केपेबल ना हो से तब तक उसका ख्याल करते हैं। ठीक है, एंड विविपेरस में क्या है, यहाँ पे तो इनको हाफ ग्रोथ होता है, जब अंडे में से चूजे निकलते हैं, देन ऑल्सो द यंग वंस विच आर फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस कैलकेरियस सेल्स, अब वो भी बहुत डेलिकेट रहते हैं, वो हाफ डेवलपमेंट के थ्रू बाहर निकले रहते हैं, तो उसके बाद उनका डेवलपमेंट चलता रहता है। बट विविपेरस में क्या है, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस डन अंडर द इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ओके, पूरी तरह से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, आंख, नाक, हाथ, पैर, कान सब तरह से बन के तभी क्या होता है, दे मूव आउट फ्रॉम देयर फीमेल बॉडी। ओके, the animals in which the development of zygote into young one takes place inside the body of female parent is called as viviparous. After attaining a certain age of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Most of the mammal. अब most of the mammals क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे exception है। exception यहाँ पे क्या है, platypus. platypus is a mammal, but ये क्या है, ovoviviparous है। ovoviviparous मतलब कि प्लैटिपस पूरी तरह से ओवोपेरस है। कंगारू इज ओवोविविपेरस ना, पेरस। प्लैटिपस क्या है, ये अंडे देती है,
ये ग्रोथ नहीं कराती। और कंगारू क्या है, ओवोविविपेरस है, ये हाफ डेवलपमेंट होता है, बॉडी से बाहर तो आ जाता है जो यंग वंस ऑफस्प्रिंग रहता है, लेकिन वो अपने पाउच में लेके उनको पूरा ग्रो कराते हैं, जब तक वो अपने ग्रोथ स्टेज पे नहीं आते वो अपने पाउच में ही लेके रखते हैं। तो ये क्या है, ओवोविविपेरस। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिखा है, सॉरी मोस्ट ऑफ द मैमल्स। Now, flowering plant में क्या हो रहा है? The zygote is formed inside the ovule. After fertilization, all the parts of flower are shed off except the pistil. फर्टिलाइजेशन के बाद सारे पार्ट्स क्या होते हैं, झड़ जाते हैं पिस्टिल को छोड़ के, ठीक है। फिर इन सम प्लांट्स द सेपल आर परसिस्टेंट एंड रिमेन अटैच्ड टू द डेवलपिंग फ्रूट। एग्जांपल नहीं दिया है, बट यहाँ का एग्जांपल यू कैन राइट रिमेन परसिस्टेंट रिमेन अटैच्ड टू द डेवलपिंग फ्रूट। ओके, डेवलपिंग फ्रूट से ही अटैचमेंट जो हो जाएगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो भी गया है, स्टिल दे आर अटैच्ड टू द डेवलप्ड फ्रूट। तो यहाँ पे वी कैन राइट एप्पल प्लांट और वी कैन राइट जैक फ्रूट। Okay. Then in ovule, zygote divides several times to form an embryo. The wall of ovule becomes hard and develops into seed. ये प्लांट की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बार डिवाइड हो जाते हैं तो हार्ड हो जाएगा और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। After these development, the wall of ovary also starts to swell. As a result of it, the ovary develops into fruit, which in turn develops into thick cell wall called pericarp. फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफ ओवरी वॉल, जब कई सारा वॉल डेवलप हो जाता है तो वो स्वेल आउट करने लगता है। स्वेल आउट करने की वजह से क्या होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है। When the seed mature, they are dispersed and under favorable condition they germinate and are able to form new plant. Seeds क्या होते हैं? They are able to form the new plant after the germination. So yes, this is how the chapter is completed. See, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ किस किस में हो रहा है, बस दोनों तरह का रिप्रोडक्शन we have covered. Any doubt in this whole chapter? Can you explain juvenile phase? Okay, juvenile phase. Juvenile phase is basically the young phase, बचपन वाला phase है, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो बस याद रख लो बचपन वाला फेज, मेच्योरिटी से पहले, ठीक। बिफोर अटेनिंग द मेच्योरिटी, इट इज अप टू 0 to 12 to 13 years of age, जहाँ पे मेच्योरिटी नहीं अटेन हुई रहती है, जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस इतने नहीं कन्वर्ट हुए रहते हैं। हार्मोनल मेच्योरिटी की बात होती है यहाँ पे कि व्हाट आर द रीजंस दैट लेड टू दिस जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्शन फेज से पहले जितना भी फेज है वो कहाँ आएगा, जुवेनाइल फेज में, वेदर इट इज 0 to 12 years और 13 years और 15 years, जब तक की रिप्रोडक्शन फेज या मेच्योरिटी फेज ना आ जाए। इन आवर फेज आवर लाइन यू कैन से कि जब तक की प्रॉपर मेच्योरिटी डेवलपमेंट ना आ जाए, या यू कैन से कि पीरियड्स ना आ जाए, उसके पहले जितना भी फेज है वो क्या है, जुवेनाइल फेज है। बिकॉज बिफोर पीरियड फेज क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, तो अभी भी क्या है, वो जुवेनाइल फेज में चल रहा है। बट जो वो फेज पूरा मेच्योरिटी ऑफ द बॉडी एंड हार्मोनल थिंग्स आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है।